ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم ہو کیا؟ میں تمہارے بارے میں تصور تک نہیں کرنا چاہتی۔ آئندہ میرے بارے میں سوچنے سے پہلے کم از کم خود کو ایک مرتبہ دیکھ لینا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا تھا اور دشمن جاں کے الفاظ بار بار اس کے دماغ پر آتے اس کے سینے میں خنجر گھونپ رہے تھے۔ اپنی تذلیل اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انسان چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب اس کا کوئی من پسند شخص اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو وہ اندر ہی اندر مر جاتا ہے۔ اس کے نمبر پر آتی کال نے اسے کافی حیران کر دیا اور اس نے چونک کر اس نمبر کو دیکھا۔ کچھ انجانا سا نمبر تھا، مگر پتہ نہیں کیوں یوں لگ رہا تھا کہ کوئی خوشی کی خبر لے کر آیا ہے۔ اس نے شان بے نیازی کے ساتھ گرین کلر کے سرکل پر کلک کر دیا اور موبائل کان سے لگا دیا۔ مقابل کے بولنے کا منتظر وہ باہر اپنے لان کو دیکھ رہا تھا۔ "Is this زہیب دیئر؟ کیا دوسری جانب زہیب موجود ہے؟ کسی نے بڑے ہی پیشہ ورانہ انداز میں استفسار کیا تو اس کے ماتھے پر کچھ سوالیہ انداز میں شکنیں پڑ گئیں۔ "یس، ہی از اسپیکنگ"۔ اس کے انداز میں ہی سوال تھا کہ آپ کون بول رہے ہیں؟ "مبارک ہو، آپ کا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا ہے"۔ وہ اس خوشخبری کا منتظر بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا CSS کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہوا تھا، لیکن انٹرویو میں وہ کچھ کنفیوز ہو گیا تھا، تو اس چیز کی اسے قطعاً امید نہیں تھی اور یہی لگا کہ شاید کوئی پرینک کال کر رہا ہے۔ "سوری"۔ "جی سر، آپ کا انٹرویو کلیئر ہو گیا ہے۔ آفیشیل نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بھیج دیا گیا ہے اور آپ اپنی ای میل بھی چیک کر سکتے ہیں"۔ دوسری جانب سے دوبارہ پیشہ ورانہ انداز میں کہا گیا اور اس کے دل کی دھڑکن ایک دم جیسے رک گئی تھی۔ "آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ ایک بار انسان اپنی زندگی کی کوئی بہت بڑی قیمتی چیز ہار جائے تو اس کے بعد کچھ جیت بھی جائے تو اسے یقین نہیں آتا"۔ "جی سر، آپ اپنی آفیشیل ای میل چیک کر لیں، اس کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا۔ اس کے اندر ہی تمام تفصیلات موجود ہیں اور آپ وہ بھی دیکھ کر اپنی تسلی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ سب کچھ اس میں مینشن ہے"۔ اس کے بعد اس نے کال کاٹ دی تو وہ فوراً ای میل باکس میں گیا۔ وہاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ زندگی میں پہلی بار خوشی سے رو رہا تھا۔ یہ تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پہلی ہی کوشش میں وہ CSS کا امتحان پاس کر کے ایک بہترین پوسٹ پر لگ جائے گا۔ چند دن مزید کارروائی وغیرہ کی گئی، کچھ پیپرز وغیرہ جمع کروائے گئے اور کچھ گائیڈ لائن دینے کے بعد اس کو افسر بنا دیا گیا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے۔ پورا خاندان اس پر حیران ہو رہا تھا، کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ ہمیشہ ایوریج نمبر لے کر پاس ہونے والا لڑکا CSS کیسے کلیئر کر سکتا ہے۔ لیکن اندر کی کہانی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایسی کہانی تھی جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ موٹیویشن کی وجہ کیا بنی تھی۔ صرف وہی جانتا تھا کہ موٹیویشن اس کے لیے موٹیویشن سے زیادہ اذیت تھی۔ "بیٹا، سب لوگ مبارک دینے آنا چاہتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ سب کی ایک روز دعوت ہی رکھ لی جائے، کیونکہ اگر ایک ایک کر کے سب لوگ آئیں گے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔ روز روز مہمان نوازی کرنا آسان نہیں ہے، اور بلا وجہ کا اتنے دن ہنگامہ رہے گا"۔ ماما اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کو ہنگامہ پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ رائے بتائی۔ "آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس ہفتے کو بالکل فارغ ہوں، تو آپ سب کو دعوت نامہ بھیج دیجیے گا"۔ وہ متفق ہو گیا۔ وہ اس سے چند ایک باتوں پر رائے لے کر وہاں سے چلی گئی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ "تو دشمن جان، اب تو آنا پڑے گا نا؟ کس قدر غرور سے تم نے کہا تھا کہ تم میرے گھر کبھی بھی نہیں آنا چاہتی"۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج سوموار تھا اور ہفتے کو دعوت تھی، اور اس کے
दिन गुजरने में नहीं आ रहे थे। वो बहुत मसरूफ़ होता, मगर पता नहीं क्यों ध्यान फिर जाकर उसी एक शख्स में अटक जाता। वो बहुत परेशान सा था और अपनी इस बेचैनी और परेशानी की वजह उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी। CSS के इम्तहान को क्लियर करना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और उसने उसकी ताबीर पा ली थी, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके ये हफ्ता गुजर गया और हफ्ते की शाम सब रिश्तेदार घर पर आ गए। पहले जो इसे मुंह नहीं लगाते थे, आज इसका मुंह चूम चूम कर थक नहीं रहे थे। सफ़ेद रंग के सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वैसे भी जब इंसान कामयाब हो जाता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही किस्म की चमक आ जाती है, जो यकीनन कामयाबी की ताबनाकी की बदौलत होती है। वो सबसे खुश दिली से मिला था। सब अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। उसे वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। और फिर वो खाला की फैमिली से मिलने गया तो ये सारी महफिल एकदम से तन्हाई में बदल गई। ये सारी रौनकें एकदम से शोर में बदल गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो ज़िद्दी लड़की आज भी अपनी ज़िद में इस घर में नहीं आई थी। वो उसकी पहली कोताही बल्कि गुस्ताखी माफ़ करके सोच रहा था कि अगर आज आ गई तो सब ठीक कर देगा। लेकिन जिस बुरी तरह उसने दोबारा दिल तोड़ा था, तो इसके दिल में उसके लिए बस नफ़रत ही रह गई। ये सारी दावत और ये सारे इंतज़ामात उसके लिए किए गए थे और ये बात वो खुद भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सच ही था। इसीलिए उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था, क्योंकि वो नहीं आई थी। वो वहाँ बहुत मुश्किल से बैठ पाया और जब मेहमान जाने लगे तो उसने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि 2 बार वहाँ से जाने की कोशिश की तो अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया कि वो ऐसा ना करे। सब समझेंगे कि अच्छी नौकरी लग जाने की वजह से मगरूर हो गया है, जबकि कोई नहीं जानता था कि सब उसे खुशकिस्मत समझ रहे थे और वो अभी भी खुद को बस बदकिस्मत ही ठहरा रहा था। ऑफिस में काम में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो लड़की इसके दिमाग से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। हर वक्त उसके दिमाग पर सवार रहती। वो खुद को बहुत अजियत दे रहा था। गाड़ी लेकर वो दफ्तर से निकल आया और सड़कों की खाक छानने लगा। ज़ुहैब, तुम्हें उससे बदला लेना था और इसीलिए तुमने CSS किया कि उसे पछतावा होगा कि उसने तुम जैसे कीमती हीरे को क्यों ठुकराया, मगर यहाँ पर वो तुम्हें एक बार फिर से ठुकरा गई। वो फुटपाथ पर बैठ गया और उसे वो दिन याद आए जब हिफ्ज़ा की मोहब्बत का जादू उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हीं दिनों उनके मामू की बेटी की शादी आ गई तो सब मामू के घर पर क़याम करने चले गए। हिफ्ज़ा अपनी कज़न की शादी पर तैयार हुई। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। तभी उसके एक कज़न ने इन नज़रों को समझ लिया और इनका पैगाम पढ़ लिया, और जब इसे रंगे हाथों पकड़ा तो ज़ुहैब ने पहले पहल तो इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सुहेल सब कुछ अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उसने ज़ुहैब को उकसाया और कहा कि हिफ्ज़ा तुम्हारी कज़न है तो तुम्हें उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। ज़ुहैब ने बहुत कहा कि उसे डर लगता है कहीं वो इसे रिजेक्ट ही ना कर दे, लेकिन सुहेल ने इसे यकीन दिलाया कि वो बहुत हैंडसम है और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो वो किस बुनियाद पर रिजेक्ट करेगी, और वैसे भी वो कज़न है तो यकीनन वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इसलिए वलीमे वाले दिन उसने हिम्मत करके हिफ्ज़ा को प्रपोज़ कर ही दिया, और हिफ्ज़ा के तासुरात देकर वो समझ नहीं पाया था कि क्या वो खुशी से नहीं बोल पा रही थी या गम से, क्योंकि वो मुंह खोले बेयकीनी से इसे देख रही थी। और जब बोली तो इतना कहा कि ज़ुहैब, ये बात करने से पहले एक बार तुम अपनी शक्ल आईने में देख लेते तो शायद मेरे पास ना आते। मैं तुम जैसे इंसान के बारे में तसव्वुर भी करना नहीं चाहती। को जाके तुमसे मोहब्बत करूं या शादी करूं? वो मगरूराना लहजे में कहती हुई उसकी ज़ात के परखच्चे उड़ा गई, और उसे यकीन ही नहीं आया कि कोई लड़की उसे इस कदर बुरी तरह धुतकार सकती है।
उन दिनों सुहेल ने इसे बहुत समझाया और कहा कि उसने वाकई गलत किया है और तुम्हें अब चाहिए कि तुम इतनी मेहनत करो और इतने कामयाब हो जाओ कि उसे इस लम्हे पर पछतावा हो। और फिर इसने ऐसा ही किया। दिन रात मेहनत करके उसने CSS का इम्तहान पहली ही कोशिश में पोजीशन के साथ पास कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी वो लड़की ना पिघल सकी। फुटपाथ पर बैठा हुआ ये वो अफसर नहीं था जो सबको हैरान कर देता था। हिफ्ज़ा, अगर मैंने तुम्हें नाक रगड़ने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी सुहेब नहीं। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा और उस लम्हे उसका दिमाग बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं रहा। घर आया तो देर हो जाने की वजह से सब सो चुके थे, इसीलिए उस वक्त उसके पास बात करने का वक्त नहीं था और उसे सुबह का इंतज़ार करना ही था, क्योंकि अम्मा दवाइयाँ खाकर सो जाती थी तो वो उनको उठाना मुनासिब नहीं समझ रहा था। सारी रात उसने आंखों में काट ली। बस दिल कर रहा था कि हिफ्ज़ा को इतनी अजियत दे जितनी उस लम्हे इसे हो रही थी। जाने क्यों जब मोहब्बत पर नफ़रत गालिब आने लगती है तो मोहब्बत का चिराग बुझ जाता है। अगली सुबह फजर की अजानों के वक्त ही वो कमरे से निकल आया था, क्योंकि सारी रात तो उसने जागकर कांटों पर गुजारी थी और वो जो थोड़ी देर के लिए लेटा भी था, अंगारों पर करवटें लेना ही नसीब हुआ था। थकन उसके सारे जिस्म में उतरी हुई थी और आंखें भी सुर्ख हो रही थी। अम्मा नमाज पढ़ चुकी थी तो वो उनके कमरे में आया। बेटा तुम? वो इसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वो तो 9-10 बजे से पहले नहीं उठता था, बल्कि दफ्तर जाने से थोड़ी देर पहले उठता था, तो इसलिए उन्हें तशवीश हुई। जी अम्मा, मुझे आपसे बात करनी थी। उसने सर को जंबिश दी और उनके पास ही बैठ गया। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। जी अम्मा, सब कुछ ठीक है। मैं शादी करना चाहता हूँ। संजीदगी से सर हिलाकर उसने जो बात कही तो उसने अम्मा को हैरान ही नहीं परेशान भी कर दिया था। वो तो बेटा करनी ही है, लेकिन अचानक क्या हुआ है? उन्होंने जांचती हुई नज़रों से इसे देखा। अम्मा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मेरी शादी करना चाहती हैं वहाँ कर दें, लेकिन मैं ये शादी 1 महीने के अंदर अंदर करना चाहता हूँ। वो अच्छी तरह ये बात जानता था कि हिफ्ज़ा को ही बहू बनाना अम्मा का ख्वाब है, सो इसने उन पर सब डाल दिया। अम्मा ने उससे उगलवाने की बहुत कोशिश की, मगर इसने उनको कुछ बातों से मुतमईन कर दिया था। उन्होंने हामी भर ली थी कि वो आज ही जाकर अपनी बहन से बात कर लेंगी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि उनका बेटा अफसर लग गया है तो अब पता नहीं वो किस तरह की लड़की से शादी करना चाहेगा। लेकिन जब उसने सब कुछ इन पर छोड़ दिया तो इनके दिल से दुआएं निकलना शुरू हो गई। इनको क्या मालूम था कि कभी कभी किसी की दुआओं की कबूलियत किसी के लिए अजाब बनकर आ जाती है। और उसी दिन उसे दफ्तर के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया। पहाड़ी इलाका था, इस वजह से वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं थे और वो बहुत तंग हो गया था। वो जानना चाहता था कि खाला लोगों ने क्या जवाब दिया है। इसी वजह से बेताबी और बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अल्लाह अल्लाह करके 1 हफ्ता गुजरा और वो वापस आया तो बहुत बड़ी खुशखबरी उसकी मुंतज़िर थी। अम्मा ने बताया कि उन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कहती है और वो कितनी ही देर बेयकीनी से उन्हें देखता रहा। हिफ्ज़ा से पूछा है? ना चाह कर भी उसने अम्मा से यह सवाल कर लिया तो उन्होंने अचंभे से इसे देखा। बेटा, शरीफ घरों में माँ बाप ही औलाद की शादी का फैसला करते हैं और वैसे भी उसके वालिदैन ने फ़ौरन ही हाँ कर दी थी, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। उसे अगर कोई एतराज़ होता तो यकीनन वो अपने वालिदैन के सामने रख देती। अम्मा ने जिस अंदाज में कहा तो वो बस उनका दिल रखने को मुस्कुरा ही सका। क्या आपने उनको बताया था कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है? आपको मालूम है ना कि इस नौकरी में अगर बंदा शादीशुदा हो जाए तो फिर अच्छा घर मिलने के चांस भी होते हैं। उसने उनसे यही बहाना बनाया था, वरना उनको मुतमईन करना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ बेटा, मैंने उन्हें ये बात बताई थी और उन्हें भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं।
लेकिन एक बात और है जो मैं तुमसे पूछे बगैर कह आई हूँ कि हमें जहेज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग जहेज बनाने लगेंगे तो बेटा अगले 2 सालों में भी वो शादी नहीं कर सकेंगे। वैसे भी हमारे घर में कौन सा किसी चीज़ की कमी है। उन्होंने मुस्कुराकर ज़रा डरते हुए कहा था कि कहीं वो कोई शदीद रद्द अमल ना दे दे, इसीलिए उसे सफाई भी पेश करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक किया आपने, हमें जहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराया और फिर उनसे 2-4 बातें करने के बाद कमरे में आ गया और मुतमईन अंदाज में बेड पर बैठ गया। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि शादी मैं ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए नहीं करूँगा, बल्कि किसी से बदला लेने के लिए करूँगा, किसी की ज़िंदगी से सुकून रुखसत करने के लिए करूँगा। और हिफ्ज़ा, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत थी, मगर देखो नफ़रत में बदल गई। उसने आंखें मूंद ली। वो अच्छी तरह जानता था कि हिफ्ज़ा ने एतराज़ करने की कोशिश की होगी, मगर वहाँ पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसको अमीर होता देखकर जाहिर है कोई भी इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सका होगा। 1 महीना पलक झपकते में ही गुजर गया और वो धूमधाम से शादी करके उसे अपने घर ले आया। शादी इतनी धूमधाम से की गई थी कि गोया उसे वाकई वो दिल से अपनी दुल्हन बनाकर ला रहा हो। कमरे को उसने गुलाब और चंबेली के फूलों से सजाया हुआ था। कमरे में मौजूद हर चीज़ उसकी अमारत की गवाही दे रही थी। उसे कमरे में आने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए जब कमरे में आया, बेड पर सुर्ख रंग के जोड़े में बैठी हुई दुल्हन को देखकर उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़का। वो कोई और लड़की नहीं थी, वो वही थी जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था, और फिर वही लड़की थी जो इसकी दुल्हन बनी उसकी सेज को रौनक बख्श रही थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उससे नज़रें हटाना ज़ुहैब को दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। दिल चाह रहा था कि अपनी तमाम बेइज्जती भूल कर वो उसको दिल से कबूल कर ले और पलकों पर बिठा ले। चंद कदम उठाकर उसकी जानिब गया तो इसे वो दिन याद आ गया जब उसने बुरी तरह से इसे धुतकारा था। नफ़रत ने फिर इसे अंगड़ाई ली और बदले की आग दिल में फिर से भड़कने लगी। जो थोड़ी देर के लिए वो उसके हुस्न के ज़ेर हुआ था, वो फिर से उतर गया। उसने बेदर्दी से बेड पर बैठी हिफ्ज़ा को अपने आहनी हाथों के शिकंजे में लेकर झटका देकर उसे बेड से उतारा और अपने सामने खड़ा किया। वो बुरी तरह झटका खाकर गिरने लगी थी जब उसके गिर्द बाजू हायल करके उसने अपने सामने खड़ा किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जंगली इंसान? हिफ्ज़ा ने गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा तो वो हंसा। क्या हुआ माय डार्लिंग वाइफ? ज़ुहैब की आंखों से सरासर शरारत टपक रही थी, मगर लहजे में कुछ ऐसा था कि उसे झुलसाने को काफ़ी था। ये शादी ज़बरदस्ती हुई है, तुम्हें ये बात अपने जहन में रखनी होगी। वो चिल्लाई थी और इसे अपनी हद में रहने को कहा था। मैं भी तुमसे शादी करने को मरा नहीं जा रहा था। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए की है। उसकी ये बात सुनकर हिफ्ज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या हुआ, चौंक गई ना? तुम मुझे एक बार तो धुतकार चुकी हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे आगे भीख मांगने आऊँगा? क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है। अब अगर मैंने तुम्हें नाक रगड़ने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी ज़ुहैब नहीं। उसकी आंखों से नफ़रत के अंगारे झलक रहे थे जो हिफ्ज़ा के वजूद को जलाने के लिए काफ़ी थे। तुम जैसे कमज़र्फ़ इंसान से मुझे यही तवक्को थी। वो दुख से उसे देखती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। उसकी ये बात सुनकर ज़ुहैब की उसके बाजू पर गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत हुई कि उसकी तो जैसी आंखें ही बाहर उबलने को तैयार हो गई। अब तुम मेरी बीवी हो तो अल्फाज का इस्तेमाल ज़रा एहतियात से करना, क्योंकि दरगुजर अब नहीं करूँगा। वाज़े अल्फाज में उसे तंबीह की जा रही थी और हिफ्ज़ा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब जाओ, अभी जाके चेंज करके आओ।
शौहरों के कुछ हकूक भी होते हैं जिनको निभाना बीवियों पर फर्ज होता है। इसने उसे छोड़ा और वो कालीन पर जा गिरी। अब तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ुहैब है कौन। तुमने आज से पहले फ़कत मेरी मोहब्बत देखी है और अब मेरी नफ़रत देखोगी, क्योंकि मोहब्बत को नफ़रत तक लाने में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। वो नफ़रत से कहते हुए अपनी शेरवानी के बटन खोलता हुआ गहरे सांस लेने लगा। उठो। वो इतने गुस्से से धाड़ा कि वो डरती हुई वहाँ से ड्रेसिंग रूम में चली गई। तुम्हें शायद मेरी नफ़रत से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इस नफ़रत से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इस सीने में पहले मोहब्बत होती थी जो अब जल रही है, और उसी जलन से मेरा सीना जल रहा है। उसने सर हाथों पर गिरा दिया। सब पा लिया था, मगर फिर भी बेसकूनी ही बेसकूनी थी। लेकिन इसे कहाँ इल्म था कि अभी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत से उसका सामना होना बाकी था। उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और हिफ्सा उसकी नफ़रत से खाइफ होकर लबों पर कुफल लगा चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई तो पता नहीं इंसान का अपनी बहनों से कैसा रिश्ता होता है कि उनसे वो चाहकर भी अपने गम नहीं छुपा सकता। एक बात पूछूं मैं तुमसे? नायला ने उसकी जानिब देखते हुए थोड़ा झिझक कर पूछा। हाँ पूछो। चेहरे और आवाज़ को हशाश बशाश बनाकर उसने इजाज़त दी। क्या तुम खुश हो ज़ुहैब भाई के साथ? उसके सवाल पर हिफ्ज़ा का दिल कई किरचियों में टूट गया था। कभी कभी हमारे अपने भी ऐसे सवालात करके हमारी रूह को तार तार कर देते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि अनजाने में उनका किया गया सवाल हमें कितनी अजियत दे गया है। हाँ, मैं खुश हूँ। खुद को कंपोज करने में और इस अजियत से निकलने में उसे चंद लम्हे लग गए थे। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुझे तो बताओ कि तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रही? तुम्हारे चेहरे पर वो नई नवेली दुल्हनों वाला रूप क्यों नहीं? उसने अबरू उचकाकर पूछा तो कमरे से आती आवाज़ सुनकर कमरे के अंदर दाखिल होता ज़ुहैब दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ नायला बाजी। वो बुरी तरह से रोने लगी और ज़ुहैब ने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो कभी नहीं बताएगी। लेकिन क्यों? तुम सुहेल को भूल क्यों नहीं जाती? नायला बाजी ने पता नहीं किसका नाम लिया कि वो तो क्या, अंदर बैठी हिफ्ज़ा भी काम गई। बात सुहेल की नहीं है बाजी, बात कुछ और है। उसने फौरन अपने आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। और क्या बात है? उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। ज़ुहैब ने मुझे प्रपोज़ किया था और उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, और ये बात वो दिल पर ले गया, और उसके बाद मुझे नीचा दिखाने के लिए ही उसने CSS किया। जब वो कामयाब हो गया तो उसे मालूम था कि अब मुझे पाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अम्मा तो वैसे ही उसके गुण गाती थी। और शादी वाली रात मुझे इल्म हुआ कि उसने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की थी। वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, अजियत देता है, और मैं यहाँ उसकी बीवी नहीं बांदी बनकर रह रही हूँ। कर्ब से कहते हुए उसने नायला बाजी को हैरान कर दिया था। यानी वो तुमसे मोहब्बत करता था, जो कि अब इंतकाम बनकर रह गई है। उन्होंने हाथ दर्जा बेयकीनी से इसे देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने सर हिलाया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना समझदार और पढ़ा लिखा लड़का अपनी ज़िंदगी को बेवकूफ़ी की नज़र कर रहा है। मैं जाकर खाला से बात करती हूँ, वही उसका दिमाग दुरुस्त करती हैं। तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। नायला बाजी ने उसे तसल्ली दी तो उसने फ़ौरन उनके हाथ पर अपना हाथ रखा, और ज़ुहैब ने मुंह पर हाथ रख लिया। लेकिन उसे कहीं न कहीं इस चीज़ की तसल्ली थी कि अम्मा उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि उसने खुद हिफ्ज़ा से शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि अम्मा ने खुद उसके लिए रिश्ता मांग लिया था। नहीं नायला बाजी, ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई और ना ही उसकी कोई शिकायत लगाई है।
बस मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ था, इसीलिए बता दिया है। उसने सूं सूं करते हुए उनको देखा। तब भी ज़ुहैब को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो वो फौरन वहाँ से हट गया था, लेकिन वो हकीकतन सब सुनना चाह रहा था और गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था कि शायद सुहेल उससे मोहब्बत करता था और वो भी उसको चाहती थी। सुहेल इन दोनों के मामू का बेटा था और उसे लग रहा था इसीलिए सुहेल ने इसे उकसाया था कि वो उससे इजहार मोहब्बत करे, ताकि वो इसे धुतकारे और वो इसका मजाक उड़ा सके, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि रिजेक्शन के बाद उसने बहुत मजाक उड़ाया था। उन दोनों से इसे अब बहुत नफरत हो गई थी। तुम क्या इसके साथ ये रिश्ता निभाना चाहती हो? उन्होंने अबरू चुकाए। रिश्ता निभाने का तो उसको कोई शायद इरादा ही नहीं है, लेकिन उससे अलैदगी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं। तुमने बहुत समझदारी का फैसला किया है। देखना उसका गुस्सा उतरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसे कौन सा इस बात की खबर है कि तुम्हारी और सुहेल की बात पक्की होने वाली थी। नायला बाजी ने इत्मीनान के साथ उसके हाथ को थपथपा कर कहा, नायला बाजी, आपको गलत फहमी हो रही है कि मैं सुहेल को पसंद करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। नायला बाजी, ये रिश्ता सरासर घर वालों की मर्जी से हो रहा था। इसमें हम दोनों की कोई भी जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी। इस लिहाज से मेरी फिक्र मत करें। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ज़ुहैब को अकल दे दे। उसने गहरी सांस ले ली और फिर नायला बाजी चली गई तो रात के 10 बजे वो कमरे में आया। उसकी आंखें ख़तरनाक हद तक सुर्ख लग रही थीं और जैसे उसने हिफ्ज़ा को देखा तो उसकी रूह तक कांप गई थी। उसने कुछ नहीं कहा था, बस जाकर बेड पर लेट गया और हिफ्ज़ा को हैरत हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा था कि अच्छा हुआ मुसीबत टल गई थी। वो उसके सामने सोफे पर बैठी किताब पढ़ती रही और वो छत को घूरता रहा। उनकी शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इतना खामोशी से कमरे में आकर लेटा था, वरना वो तो कोई ना कोई बात पकड़े ही रखता और इसको ताने ही मारता रहता। हर रोज़ इससे कोई ना कोई बहाना मिल जाता था, लेकिन हैरत की बात यही थी कि वो खामोशी के साथ लेट गया था। वो चंद सानिया उसे देखती रही। 1-2 बार उसने पूछने की हिम्मत की कि उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन फिर पूछ ना पाई। जब वो सो गया तो धीरे से उठकर बेड पर गई और झुककर उसके माथे पर हाथ रखा और ये चेक करने लगी कि कहीं उसे बुखार तो नहीं, क्योंकि वैसे वो इतना रहमदिल नहीं हो सकता था। किसी के हाथ का नर्म सा लम्स पाकर उसने फौरन आंखें खोल दी। वो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं कैसे उसकी आंखों से फिक्रमंदी झलकने लगी और वो बेयकीनी से इसे देख रहा था। फिर शदीद गुस्से से इसका हाथ झटका। आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुर्राया और हिफ्ज़ा उसे बेयकीनी से देख रही थी। फिर उठकर बैठा और उसकी आंखों में झांका। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, इतनी शदीद नफ़रत कि मुझे इस बात पर ख़ुद से नफ़रत हो रही है कि मैं तुमसे इतनी नफ़रत क्यों नहीं कर पा रहा कि तुम जलकर राख हो जाओ। वो दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, लेकिन हकीकतन धाड़ रहा था, जबकि वो मुंह खोले उसे देख रही थी। इस कमरे से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मुझे तुमसे इतनी नफ़रत महसूस हो रही है। उसने कमरे से निकल जाने को कह दिया तो उसके गुस्से के पेशे नज़र वो कमरे से निकल गई, जबकि उसने सर हाथों पर गिराकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं हिफ्ज़ा से मोहब्बत करता था और वो सुहेल से मोहब्बत करती है। बदगुमानियों ने उसको बेचैन कर दिया था। उसका सारा सुकून बर्बाद होकर रह गया था और अपनी खुद साख्ता सोचों की वजह से वो बहुत अजियत में आ गया था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के आधे से ज़्यादा मसले उसकी अपनी सोचों की वजह से होते हैं। मज़ीद 1 हफ़्ता गुजर गया था और इन दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिन में जैसे वो उसे बार बार तंग करता था, अब वो मुकम्मल तौर पर खामोश किरदार बन गया था और यही बात हिफ्ज़ा के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन रही थी।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे तुमसे बात करनी है। एक रोज़ हिम्मत करके वो उसके सामने जा खड़ी हुई। ज़ुहैब ने एक लम्हे के लिए इसकी जानिब देखा और फिर ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ा हो गया। ज़ुहैब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसने आर या पार लगने का फैसला कर ही लिया। और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। पलटकर जिस अजनबियत भरे लहजे में उसने कहा तो वो दुख से उसे देखती रह गई। मैं इस घर में तुम्हारी वजह से हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करना चाहते तो यहाँ मेरा रहने का क्या जवाब बनता है? दुख से उसकी आंखों में देखते हुए जो सवाल पूछा तो पल भर को वो लाजवाब हो गया। तुमने कौन सा ये शादी अपनी रजामंदी से की थी, तो अब ये ड्रामा क्यों लगा रही हो? वो दुख से उसे देख रहा था, और वो तो हमेशा से गुस्से से देखने का आदी था। दुख तो उसकी आंखों में कभी नहीं आया था। इस बात में कोई शक नहीं कि मैंने तुमसे शादी दिल से नहीं की थी, लेकिन वो बोल रही थी तभी ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। दोनों की निगाह बैक वक्त फ़ोन की तरफ गई। सुहेल कॉलिंग देखकर दोनों ने लब भेंच लिए थे, लेकिन ज़ुहैब ने दुख से और हिफ्ज़ा ने इसलिए कि उसे इस वक्त की मदाखलत बहुत बुरी लगी थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, उसने कॉल पिक करते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो दुख से इसे देखता रहा। तुम्हारे लिए वो सुहेल बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया। मुझे तुम्हारी ना रजामंदी का इल्म था, तो मुझे इस शादी के लिए कोई ऐसा ओछा हथकंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जिसने सिर्फ अजियत ही दी है। मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम सुहेल की ज़िंदगी में वापस चली जाना। गो के उसके लिए फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत करके ये फ़ैसला कर लिया था। वो बाहर टेरेस पर खड़ी उसका फ़ोन सुन रही थी। पता नहीं कैसे सारी नफ़रत अब दिल में अजियतनाक दर्द जैसी हो गई थी, और सारे जिस्म में खून की जगह वही दर्द फैलने लगा था। वो अपना लैपटॉप बैग उठाकर दफ्तर की तरफ चला गया था, मगर जहन में बहुत कुछ चल रहा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सुहेल। वो खुशी से इस बात का एतराफ़ भी कर रही थी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि पुप्पो इस बात के लिए राज़ी हो गई हैं कि वो रिमला का रिश्ता मुझे दे देंगी। दूसरी जानिब सुहेल भी खुशी से कह रहा था। वो हिफ्ज़ा की बहन रिमला को बहुत पसंद करता था, और बीच में उसके और हिफ्ज़ा के रिश्ते की बात चलने लगी तो दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। चूँकि उनके घरों में बराह रास्त बोलने का कोई रिवाज नहीं था और ना ही ऐसी कोई रिवायत थी, इसीलिए बहुत परेशान थे। और ऐसे में जब अचानक ही ज़ुहैब का रिश्ता आ गया तो हिफ्ज़ा भी इसीलिए मान गई थी कि अगर वो इसके लिए ना मानती तो उसे सुहेल से शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ जाती। और यही गलत फहमी अब ज़ुहैब को हो गई थी कि शायद वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। मुझे ये फ़ैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उसने आज वकील को बुला लिया था कि वो तलाक के पेपर्स तैयार करवा ले। उसके दिल से हिफ्ज़ा की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन वो उससे उसकी मोहब्बत को नहीं छीनना चाहता था। उन्होंने कुछ दिनों का वक्त मांग लिया था। वो घर आया तो अम्मा से इल्म हुआ कि हिफ्ज़ा मैके गई हुई है। वो सिर्फ बात नहीं कर रहा था, लेकिन कमरे में उसकी मौजूदगी ही बहुत होती थी, और जब से वो गई थी उसे कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। इसीलिए वो जानबूझकर देर से घर आने लगा। सोच रहा था कि ज़िंदगी उसके बग़ैर कैसे गुजरेगी, कि अभी वो उसका शिद्दत से मुंतज़िर था कि कब वो वापस आए। उन्हीं दिनों में तलाक के कागज़ात आ गए तो उसका दिल बहुत रोया था, लेकिन इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे फ़िलहाल इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि उससे कितने सवाल खड़े हो जाएंगे और वो उनका जवाब क्या देगा। कमरे में ही उसने कागज़ात रख दिए, ये जाने बगैर कि एक दिन इतनी बड़ी मुसीबत लाने वाले थे। और एक शाम घर आया तो वो आई हुई थी। वो कमरे में आया तो उसे देखकर कितने ही पल बेयकीनी से देखता रहा। वो सोफे पर बैठी हुई थी और नज़रें उसकी सामने मौजूद कागज़ात पर थीं, और वो यूं देख रहा था कि जैसे कोई प्यासा सामने पड़े पानी के प्याले को देखता है।
और समझ में नहीं आता कि वो अपनी प्यास बुझा ले या वापस चला जाए। ये क्या है ज़ुहैब? उसे देखते ही वो उठ खड़ी हुई और कागजात इसकी जानिब बढ़ाए। वो जो उसे देख देख कर सब कुछ भूल चुका था, अब ये कागजात देकर हकीकत की दुनिया में वापस आ गया। इन पर वाज़ेहा लिखा हुआ है। नजरें चुराकर उसने अपना बैग बेड पर रखा और जूते उतारने लगा। तभी मैं ये तुमसे पूछ रही हूं कि ये सब क्या है। अब की बार वो बगैर डरे चिल्लाई, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर चुका हूं, इसका मुझे एहसास हो चुका है और उसी की अजाले की कोशिश कर रहा हूं। वो बूट के तस्मे खोलते हुए कह रहा था, ज्यादती? तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, मगर अब मजीद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? अगर मैं इस रिश्ते को कबूल ना करती और 3 बार कबूल है ना कहती तो ये रिश्ता कभी जुड़ नहीं सकता था। तो इसको तोड़ने का हक सिर्फ तुम्हें कैसे मिल गया? उसका गिरेबान पकड़ते हुए वो चिल्ला रही थी। हाँ हिफ्ज़ा, मैं मान रहा हूँ कि गुस्से में मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ मज़ीद बांध कर नहीं रखूँगा। कसम से ये फ़ैसला मैंने बहुत मुश्किल से किया है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। पता नहीं कैसे वो इस लम्हे कमज़ोर पड़ गया और वो हक दक उसे देखती रही। तुम्हें किसने कह दिया कि ये फ़ैसला मेरे लिए अच्छा साबित होने वाला है? तुमने मुझे तब क्यों नहीं छोड़ा जब मुझे तुमसे नफ़रत थी? वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे नफ़रत करती हो, इसीलिए। वो बोल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो अपने आंसू साफ करने लगी। बेटा, नीचे तुम्हारे मामू लोग आए हैं। अम्मा ने आकर इत्तला दी तो वो दोनों थोड़ी देर के बाद नीचे चले गए। सुहेल को देखकर उसके तमाम ज़ख्म हरे हो गए थे, जबकि हिफ्सा सुहेल से बहुत अच्छे से बोली थी। खाना वगैरह खाने के बाद सब ख़वातीन एक तरफ बैठ गईं तो वो और सुहेल एक कमरे में रह गए। तू ये नहीं पूछेगा कि हम लोग अचानक क्यों नाजिल हुए हैं? सुहेल ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी पुप्पो का घर है, तुम जब चाहो आ सकते हो। वो चाहकर भी अपने लहजे की अजनबियत नहीं छुपा पाया था, जबकि सुहेल इतना खुश था कि वो समझ ही नहीं पाया था। वाह भाई, मोहब्बत की शादी ने तुझे बड़ा बदल दिया है, वो शरीर लहजे में कह रहा था, जबकि उसे लगा कि उसके तमाम ज़ख्म हरे हो गए हों। अच्छा, मैं तुझे एक खुशी की खबर देने लगा हूँ, लेकिन तू मुझे गालियाँ नहीं देगा, वादा कर। उसने फ़ौरन छोटे बच्चों की तरह हाथ आगे किया तो ज़ुहैब ने नासमझी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हारी साली यानी कि रिमला को बहुत पसंद करता था और इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी और हिफ्ज़ा की शादी जल्द अज जल्द हो, ताकि मेरी और रिमला की शादी हो सके। और फाइनली बहुत मिन्नतों तरलों के बाद पुप्पो ने शादी के लिए हाँ कह दी है। वो जिस कदर खुशी से बता रहा था तो वो सदमे में ही चला गया था। तुम सच कह रहे हो? वो बेयकीनी से इसे देख रहा था। देखा, मुझे यकीन था कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया तुम्हें बताने के लिए। वो मुस्कुराकर इसे बता रहा था। लेकिन तुझे पता है, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे इस मोहब्बत के खेल में कब मिला? जब तेरा रिश्ता जाने से पहले अम्मा मेरा रिश्ता हिफ्ज़ा के लिए लेकर चली गई और हम दोनों इतने परेशान हुए कि क्या बताऊं। और फिर इस दौरान तुम्हारा रिश्ता बहुत बड़ी गनीमत लगा और फिर मुझे डर था कि कहीं हिफ्ज़ा इनकार ना कर दे, लेकिन शुक्र है उसने इनकार नहीं किया और तुमसे शादी कर ली। वो खुशी से बता रहा था और वो अपनी ही नज़रों में गिरता चला जा रहा था कि उसने ज़रा सी गलत फहमी को क्या से क्या बना लिया। 2 दिन वो लोग रहकर वापस चले गए क्योंकि रिमला और सुहेल की मंगनी हो गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी तो ज़ुहैब ने उसका हाथ थाम लिया। ये क्या तरीका है? जब चाहा ज़िंदगी में शामिल कर लिया और जब चाहा निकाल दिया। क्या मैं कोई खिलौना हूँ? वो फट पड़ी थी। हिफ्ज़ा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ।
مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی. مجھے یہ لگا کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو. دیکھو، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں تو شاید تم خوش رہنا شروع کر دو. کیونکہ مجھے شادی سے پہلے والی حفصہ یاد ہے کہ جو ہنستی تھی. میرا تو قصور نہیں کہ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، ورنہ یہ بات تم جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پتہ نہیں محبت کا اظہار کرتے ہوئے اچانک سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی کہ اس کا دل فوراً پگھل گیا. ہاں، سارا قصور میرا ہی ہے. تم نے کب مجھ سے محبت جتائی ہے؟ شادی کی پہلی رات ہی کہہ دیا کہ یہ شادی میں نے بدلے کے لیے کی ہے. اس کے باوجود تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تم سے محبت ہو گئی. تمہاری نفرت کے باوجود میں نے تم سے محبت کی ہے. وہ دکھ سے کہہ رہی تھی. میں معافی مانگتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے محبت سے تمہارے دل کو جیتنا چاہیے تھا. مجھے معاف کر دو پلیز. اس نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے. بس کر دو زہیب، پاگل مت بنو. میرا دل تم تبھی جیت گئے تھے جب تم نے CSS کلیئر کر لیا تھا. وہ مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا. لیکن تم مبارکباد دینے کیوں نہیں آئی؟ وہ الجھتے ہوئے کہہ رہا تھا. اگر میں مبارک دینے آ جاتی تو تمہیں لگتا کہ شاید میں تمہارے اسٹیٹس سے متاثر ہو گئی ہوں. جب حفصہ نے یہ کہا تو وہ فوراً سے سر پر ہاتھ رکھ کر خود کو کوسنے لگا. اچھا ہوا کہ تم نہیں آئی. وہ مسکرایا. کیا مطلب؟ وہ چڑ گئی. کہ تم نہیں آئی تو مجھے اس طرح شادی کرنے کا خیال آیا اور آج ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں. یعنی تم مجھ سے اصلی والی محبت کرتے ہو؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی. نہیں، نقلی والی، ہنستے ہوئے کہہ کر زہیب نے اسے ساتھ لگا لیا. وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ذرا سی غلط فہمی نے کیسے زندگی میں کڑواہٹوں کو گھول دیا تھا. انسان کو بدگمان ہونے سے پہلے ایک بار چیزوں کو کلیئر کرنے کا موقع ضرور دینا چاہیے. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.